Hello friends, welcome to my YouTube channel. And today we will discuss about class 10 science activity number 1.1. Clean the magnesium ribbon with the help of sandpaper. Hold the magnesium ribbon with the help of tongue and burn it by Bunsen burner. Collect the ash within the watch glass. Here you can observe that within watch glass magnesium oxide is obtained due to presence of oxygen in surrounding. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. This is the reaction. Activity 1.2. Take a beaker containing lead nitrate solution and take another beaker containing potassium iodide solution. Add potassium iodide to lead nitrate solution. Now you can see the yellow color precipitate in solution is obtained. In this reaction we can easily observe change in color of solution. The colorless potassium iodide and lead nitrate react to form yellow color lead iodide. Activity 1.3. Take a flask containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid and take few zinc granules. Also take a cork and a glass tube. Add zinc granule into dilute sulfuric acid. Handle the acid carefully. Covers the neck of the flask with the help of cork. Insert a glass tube. This reaction we can observe rise in temperature of conical flask and bubbles in dilute sulfuric acid around zinc granules. Here we can observe liberation of hydrogen gas. When we take candle near to the conical flask, we observe a pop sound due to presence of H2 gas. Zinc react with sulfuric acid to form zinc sulfate plus hydrogen. Science activity 1.4. Take a beaker containing calcium oxide or quicklime. Add water slowly. Now, if you will touch beaker, you feel raise in temperature of beaker. Calcium oxide and water react to form a single product is called calcium hydroxide. Activity 1.5. Take about 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Color of the ferrous sulfate crystal is green. Take a burner. Heat the boiling tube. Burning sulfur gives odor smell. After heating ferrous sulfate, we obtained reddish brown ferric oxide. Green color ferrous sulfate heated to give reddish brown ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Activity 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Take a Bunsen burner. Heat the boiling tube. After heating, you will observe the emission of brown color fume. And these fumes are of nitrogen dioxide. You will also observe the pungent smell. Lead nitrate heated to give lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Activity 1.7. Take a plastic mug. Drill 2 holes at its base. Fit rubber stopper into these holes. Insert carbon electrode in these rubber stopper.
Connect a 6-volt battery to these electrodes. Fill the mug with water. Add few drops of dilute sulfuric acid. Take 2 test tubes filled with water. Invert the test tubes over the 2 electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe formation of bubbles in both electrodes. The test tube filled with respective gases, then remove them carefully. Bring the burning candle near the test tube. You will observe pop sound due to presence of hydrogen gas H2. Brightness due to oxygen. Hydrogen gas is present in each test tube. Activity 1.8. इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, पहला चाइना डिश एंड दूसरा 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। स्टेप 1 में हमारा जो सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है उसे हम एक चाइना डिश में लेंगे। स्टेप 2 में हम इस चाइना डिश को धूप में रख देंगे कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो गया है। ऑब्जर्वेशन 1, सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो गया, जो कि पहले सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था, अब ये ग्रे कलर का हो गया है। इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन गैस का इवोल्यूशन है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का पाउडर था वो धूप की वजह से यानी सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो गया है। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड था उसमें से सिल्वर अलग हो गया है। सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन भी था जो कि इसमें से गैस बनकर उड़ गया है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड था वो धूप की वजह से डिकम्पोज हो गया, जिसमें से सिल्वर अलग हो गया है और क्लोरीन अलग। तो हमारी जो रिएक्शन है उसमें 2AgCl धूप के प्रेजेंस में 2Ag सॉलिड बन गया और Cl2 गैस बनकर उड़ गया। एक्टिविटी 1.9। इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। एक्टिविटी को करने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए, 3 नेल्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स, सैंड पेपर, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रेड स्टैंड। फर्स्ट स्टेप में हमें तीनों आयरन नेल्स को सैंड पेपर से रब करना है। सेकंड स्टेप में हमें दोनों टेस्ट ट्यूब को मार्क करना है एज A एंड B। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमें 10 ml सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का। स्टेप 4 में हमें टेस्ट ट्यूब B को स्टैंड में लगा देना है। स्टेप 5 में हमें 3 में से 2 नेल्स को लेना है और एक थ्रेड से बांध देना है। अब स्टेप 6 में हमें बंधे हुए दोनों आयरन नेल्स को बड़े ही सावधानी के साथ टेस्ट ट्यूब B में इमर्ज करना है। 3 आयरन नेल्स में से तो हमने 2 आयरन नेल्स को थ्रेड से बांधकर और सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ दिया है। और अब स्टेप 7 में हम जो थर्ड आयरन नेल बचा हुआ है वो और जो टेस्ट ट्यूब A है उन दोनों को एक तरफ साइड में रख देंगे ताकि हम इस एक्टिविटी के एंड में कंपैरिजन कर। अब स्टेप 8 में क्या करना है, हमने जो 2 आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था अब उन दोनों को टेस्ट ट्यूब B से बाहर निकालना है आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद। स्टेप 9 में हमें दोनों आयरन नेल्स को कंपेयर करना है, जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था उसको और थर्ड वाले आयरन नेल को जिसको हमने एक तरफ साइड में रखा था। स्टेप 10 में हमें टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करना है। ऑब्जर्वेशन 1 क्या है, जो कलर था आयरन नेल का जिसको हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया था उसका कलर ब्राउनिश हो गया है। ये तो चेंज हमने देखा आयरन नेल्स में। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस में क्या चेंजेस आए हैं।
वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप करके रखा था यानी टेस्ट ट्यूब बी, उसके सॉल्यूशन का कलर अब फेड हो गया है, मतलब कि उड़ गया है उसका कलर। रिएक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इस रिएक्शन में आयरन यानी Fe ने Cu यानी कॉपर की जगह ले ली है। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है? Fe प्लस CuSO4 आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस Cu आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। दिस इज द प्रोडक्ट जिसमें Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया है और Cu की जगह खुद ले लिया है इसने। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो Fe है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो फेड हो गया है और जो Cu है वो आयरन की नेल पे डिपॉजिट हो गया है, इसके कारण आयरन ब्राउनिश हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी 1.10। इस एक्टिविटी में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला 2 टेस्ट ट्यूब्स, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। प्रोसीजर, इस एक्टिविटी में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमें 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। दूसरे स्टेप में हमें 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप, इसमें हमें क्या करना है, जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन का। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के जस्ट आफ्टर हमें एक वाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा। जो दोनों सॉल्यूशंस थे वो ट्रांसपेरेंट कलर के थे, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है वो वाइट कलर का है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं। ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, मतलब वाटर में ये घुलेगा नहीं। रिजल्ट, पहला जो वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, वो है बेरियम सल्फेट। वाइट कलर सब्सटेंस जो है उसके आसपास जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिख रहा है वो है सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन, सोडियम सल्फेट में जब हमने बेरियम क्लोराइड मिक्स किया तो बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, BaSO4 प्लस 2NaCl। इस रिएक्शन में सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया है और बेरियम ने सोडियम को। यहाँ पे Na2 रिप्लेस बाय Ba एंड Ba रिप्लेस बाय 2Na। यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट यहाँ रिप्लेस हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.11, इस एक्टिविटी में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, कॉपर पाउडर। सेकंड, एक चाइना डिश, एक बंसन बर्नर, एक ट्राइपॉड स्टैंड, एक वायर गोज। प्रोसीजर, स्टेप 1 में हमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर एक चाइना डिश में लेना है। स्टेप 2 में हमें बर्नर के ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखना है, फिर उसके ऊपर वायर गोज रख देना है। स्टेप 3 में हमें कॉपर पाउडर कंटेनिंग चाइना डिश को वायर गोज के ऊपर रखना है।
अब स्टेप 4 में हमें बर्नर को टर्न ऑन करना है और चाइना डिश को हीट होने के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्वेशन, कॉपर पाउडर को जब हम हीट करेंगे तब हम देखेंगे कि हीटिंग के बाद जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कलर से कोटेड हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर है अब वो ब्लैकिश कलर का कॉपर पाउडर में कन्वर्ट हो गया है। जो एबव रिएक्शन था उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। रिएक्शन, जब हम ये रिएक्शन कर रहे थे तब जब हमने कॉपर पाउडर को बर्न किया था, हीट किया था, तब जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके कारण यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। इसमें इक्वेशन क्या है, 2Cu प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म 2CuO। अब हम जानेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें अब रिडक्शन वाला पार्ट कौन सा है और स्टेप क्या है इस रिडक्शन के। स्टेप 5 में जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड पाउडर है अब उसको हीट करेंगे और उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। ऑब्जर्वेशन, जब हमने इसको दोबारा हीट किया और हाइड्रोजन इसके ऊपर से पास किया ब्लैक कलर कॉपर पाउडर के ऊपर से, तो जो ब्लैक कलर कॉपर पाउडर था वो दोबारा से ब्राउन कलर कॉपर पाउडर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमने ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से, कॉपर ऑक्साइड मीन्स CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया तो हमें क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर, Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में देखिए, इसमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर है। जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, गेन हुआ, और ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो रिडक्शन हुआ। यहाँ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।